Okay, good morning, good afternoon, good evening, whensoever you're watching this video. Welcome to all in the first class of mathematical tools. This thing which I'm doing, it is not the part of the syllabus of class 11 and 12, but otherwise it is really significant. Reason being, without this, without knowing these things, it becomes very difficult to understand all the concepts of physics. The formulas, the detail which I am discussing today, it will be useful in all the chapters of class 11 and 12 physics. So those people who have not opted for maths in class 11 and 12, this is really useful for them. If you just go through it once, many of your doubts will be cleared. Like many times, certain steps are there, you don't know why they're coming. So you gotta get a reason for that. So I'm starting off with the mathematical tools. Very first thing which I'll discuss today is integration and differentiation, that is calculus. Now what is integration and differentiation, or what is the use of integration and differentiation? Let's understand this thing. Suppose you were in class, let's say you were in class 1 and a packet of toffees has been given to you and you have been asked to distribute 2 toffees to everyone. Now there are, let's say, 30 students in your class and you're giving 2 toffees to everyone. So how will you calculate that how many toffees do you have? In class 1, I think you just know addition and subtraction and nothing else. Okay, so how will you start doing? You'll say, okay, I give 2 to one person, 2 to another person, then 2 to another person. This way 30 times you'll be counting 2 and you'll say, yes, I have distributed 60 toffees. सबको दो दो देंगे, 30 स्टूडेंट्स हैं तो टू टू कर हो गया, आपके कितनी हो गई 60 टॉफीज़ हैं. कोई पूछेगा आपके पास कितनी टॉफीज़ थी जो डिस्ट्रीब्यूट करी आपने, आपका हो गया 60. कितनी सबको दी, 2 आपके उस टाइम मल्टीप्लिकेशन का सवाल ही नहीं आएगा. आप सिंपली कहोगे कि मैंने 2 सबको दिए, 30 स्टूडेंट्स है, 2 + 2 + 2 + 2 and so on 30. Yes, I am very good in maths, so it becomes now 60 toffees. So this is one thing. Let's say now we reach class 4 or so and now you know multiplication. Now same thing you're doing, same packet of toffee you brought on your birthday, you start giving 2 toffees to each and every person. Now you know, someone will say, how many toffees have you distributed? You say, yeah, today 30 students were present in the class, I have given 2 toffees to everyone, so 30 into 2 is equal to 60. Okay, that means what have you learned now? You have learned multiplication. In class 1 you knew only addition, now you have learned what? Multiplication. So in this whole of this process, what were you doing? You have you know that the number of students are how much in a class? 30. I'm giving a small share to everyone, 2 toffees to everyone, and now 30 into 2 is 60. Okay, now at random, let's say you are in class 5 now. Now your mother says, yes, tomorrow is your birthday, how many toffees will you carry to school? So what you will do is, you will not ask for a packet or so like this. You will say, yes, there are around 35 students in my class, I'll be giving 2 toffees to everyone. So for my friends, for my classmates, I need 30 into 2, 70 toffees. You simply demand minimum of 70 toffees. I won't rest if I give to others or teachers, that's another thing. For my friends, I need how many toffees? 70 toffees. So straight away, what have you done? You divided the whole class into number of students, then you have divided, each person will be getting this much share, and exactly you said it is 35 into 2, 70 toffees. Okay, so what are you doing actually? You are dividing a particular thing into small parts and then you're summing it up. I'll give another example. Suppose someone asks you, what is the how many students are there in your entire school? Nowadays you're not going to the school also, but what is the total strength of the students in your entire school? Now what will you do? You will first of all divide the school into number of classes, then number of sections. Let's say I say that there are 14 classes including nursery and KG, 14 classes, and there are 2 sections in each class, let's say. So that means 14 into 2, 28 classes. That's it. Then I don't know how many students are in other classes of 11, 12, 9, 10. So I'll just say, yes, in my class there are around how many students? In my class, let's say there are 30 students. So 30 into 28, that becomes my total. Now,
So what have you done in this whole process? What have you done is, first of all, you have divided the whole school into number of small parts. This is one thing you've done. Then I have asked you to calculate the total number of students of the whole school. But you didn't calculate that. You just summed up the students of your own class. ठीक है, आपने अपनी क्लास की सिर्फ इनकी एडिशन करी. ठीक है, जो मैंने कहा था पूरे स्कूल का ऐड करो, पर अपने का बड़ा प्रोसेस नहीं करा. आपने क्या करा, सिर्फ अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ऐड अप करा कि 30 स्टूडेंट्स हैं, और ऑन एन एवरेज लगा दिया 30 इंटू 28, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लासेज इंटू सेक्शंस बन गए 28. 28 इंटू कितना हो गया 30. दैट बिकम्स द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल. दिस इज वॉट यू आर एज्यूमिंग. 2-4 ऊपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं. जो अंदाज़ा मेरा ठीक है. ऑलमोस्ट मैंने देखा था 11th B में भी इतने बच्चे थे, 10th में भी इतने बच्चे थे, 9th में 30 थे, किसी में 31 थे, किसी में 29 थे, एवरेज इतनी बन जाए. ओके, नाउ व्हाट आर यू डूइंग? यू डूइंग 3 थिंग्स एट द सेम टाइम. First of all, you are dividing the whole class, whole school into small classes, sub parts you are doing. Then second thing you are doing is you are doing the mathematical operation, that is summing up only for one class. Third thing you are doing is that the total number of divisions which you have done, you have multiplied into the sum of the classes which you have done. Sum of the classes into the sum of the students you have done. So you have done 3 things. First, division. Then doing the mathematical operation, and the third thing which you have done is what? Integration. Yes, life is like this only. So suppose what are the 3 processes you have done? I'll say the very first thing which you have done is differentiation. What have you done? You have divided a particular thing into small parts. That is differentiation. That is another analog of division, you can say, or you can say something related to subtraction. Subtraction also you do like this only. Like I have got 50 toffees and I have to distribute among 10 students. So I'll say, okay, 50, 10 you take, I have given 10, I'm left with 40, 10 you take, 10 you take, and so on. So 50 toffees I have divided among 5 people like this, 10, 10, 10, 10, 10. So what I have done? Subtracting from the main thing or dividing, it is one thing, same thing. And next, the higher version is what? Differentiation. Differentiation, it is another analog for division, subtraction. Like I said, there was a increase in cadre. In class 1 you knew only subtraction. By class 3 or 4 you knew division. And now you know what? Differentiation. What is differentiation? Differentiation is the analog of division. And where and how it is used, that we'll understand. So if I say y is equal to fx, y is a function of x. Let's say y is a function of x. If x is varied by a small amount delta x, delta means small value of delta x, then y will also change by a small amount of delta y. Is it clear? Now, as I am varying y, as I am varying this x, this y will also vary, and this is called as what? As a result of it, this will increase or decrease by a small amount. This will also increase or decrease by a small amount. This thing d delta y by delta x, where this limit of delta x is very small, it is called as differentiation. So I repeat this thing. I'll give an example and then again explain. What is differentiation? Y is a function of x. I'm changing x by a small amount. As a result of it, y is also changing by a small amount. Okay. So this change in y divided by change in x in such a way that I have put a limit. When I'm writing delta y by delta x, I'm writing limit. What is the limit? Limit is that delta x is tending towards 0. It is very, very small. This is basically differentiation. This is basically what? Differentiation. Okay. Differentiation is rate of change of y with respect to x. I'll just give an example. Suppose I have displacement. And displacement is just say given by a function t, 2t. So if I say I increase this t by a small amount, I write t is equal to t dash is equal to t plus 1, then s dash
will become 2t dash. So what is s dash? S dash is equal to 2t plus 1. That means if I talk about s dash is equal to 2t plus 1, or I can say s dash is equal to s plus 1, and s dash minus s is equal to 2. दोबारा समझो, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ठीक है। एक तरह से s जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। अब मैं कह रही हूँ टाइम को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, किससे करा? 1 सेकेंड से। सो व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ व्हेन आई एम राइटिंग t plus 1, I substituted this value instead of t dash, it becomes 2t plus 1. So what is s dash now? S dash is equal to 2t plus 2, or I say s dash is equal to 2t was what? S only, s plus 2, s dash minus s is equal to t. So what is the change in displacement? The change in displacement delta s is equal to what? 2. What was the change in time? What was the change in time? Change in time was also by 1 second. This I have written, plus 1. So what will be my velocity? Velocity is equal to delta s by delta t, where time is very very small. I put limit delta t tending towards 0, delta s by delta t, which becomes 2 by 1, which is equal to 2 meter per second. नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बात नहीं। सिंपली वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी का होता है। अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम लिख देते हैं s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यहाँ कोई लिमिट नहीं रख रखी, यहाँ कुछ नहीं रख रखा। हम कह रहे हैं टोटल हमारी जर्नी है, ये s है, ये t है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान रहे हो ये t1 है, लेट्स से ये t2 है, ये s1 है, ये s2 है। टोटल जर्नी हमारी ये है। ये तो हम अभी तक करते आए हैं कि जनरल एवरेज वेलोसिटी ही फाइंड आउट करते आए थे। अब जो नया 11th में आएगा वो सिलेबस में है कि इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे आपको निकालनी है। तो इंस्टेंट पे जब वेलोसिटी निकालोगे तो v ऐसे नहीं निकालोगे, आप निकालोगे लिमिट हम लिख देंगे कि टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट्स से इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, डेल्टा एस बाय डेल्टा है। इस ग्राफ में अगर मुझे इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर सेकंड पे लेट्स से t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट इतने में कितनी हुई? लेट्स से इतने में सिर्फ 2 डिस्प्लेसमेंट हुई 1 सेकंड में, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंशिएशन जहाँ जहाँ हम डिवाइड करते थे और हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, बट अगर हमें उसी इंस्टेंट पे निकालनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये तो हो गई सिग्निफिकेंस डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन कहाँ करा जाता है? जहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालनी होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे निकालनी है हमें, पूरी इन जनरल नहीं निकालनी, एवरेज नहीं निकालनी। और इस केस में फ़ायदा क्या है? अभी जो 10th तक 9th तक हमने पढ़ा था वो सारा हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जनरली केसेस करे थे। और अब क्या है, अगर कोई फंक्शन किसी भी तरीके से दिया हुआ है, सपोज कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है, ये कैसी वेलोसिटी कैसा वो है मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे सेम नहीं है, हर मोमेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस इंस्टेंट पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, लेट्स स्टडी दोज रूल्स, उसको फिर हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो हमें थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, वेरी फर्स्ट रूल, बिकॉज क्यों ये रूल है, पहले तो बताएं कि ये रूल है क्यों। क्योंकि अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्ट होती है वो स्ट्रेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही होती है, कोई वेव होगी वो किस तरह से मूव कर रही होगी, साइन कर्व की तरह मूव कर रही होगी, इस तरह से मूव कर रही होगी, कोई इस तरह से मूव कर रही होगी, कोई हो सकता है आपने पैराबोला पढ़ा है, पैराबोलिक मोशन में कोई चीज़ मूव कर रही होगी, कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही होगी। तो अलग अलग तरह के मोशंस होंगे। तो हमारे पास जो कुछ नोन है फॉर्मूलेज, उनके बेसिस पे हम जो है कुछ अपने डिफरेंशिएशन के रूल्स निकाल देते हैं कि किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा।
So heading is differentiation. These are certain formulas for differentiation. Formulas for differentiation. सारे नहीं लिख रहे, जितने हमारे को हमें ज़्यादा तक ज़रूरत पड़ती है उसी में लिख रहे हैं. Formulas for differentiation. Very first thing is if y is equal to constant. Constant मतलब जैसे 3, 4 कुछ इस तरह का constant है, तो आपका dy by dx ले लो. y है जो कि फंक्शन है, it becomes d by dx. This is c is equal to 0. For example, अगर y is equal to 3 है, simply 3 नंबर constant, dy by dx is equal to d3 by dx. ये क्या आ जाएगा? 0. सिमिलरली अगर आप लेते हो y is equal to पाई ले लेते हो, पाई भी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो dy by dx which is d pi by dx is equal to 0. किसी के दिमाग में आता है क्यों ना y is equal to 0? अरे भाई y is equal to 0 भी तो एक कॉन्स्टेंट है, तो dy by dx again it is equal to 0. यानी कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा. अब ये जो मैं बार बार लिख रही हूँ dx, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको हम ये लिखते हैं. ये एक मैथमेटिकल सिंबल है. इसका मतलब है हम y को x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इसका मतलब ही है कि हम y को x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इट मीन्स. तो कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर हमारा 0 आएगा. जो भी फंक्शन डिफरेंशिएट करना होता है यहाँ लिखते हैं, और d by dx उसको ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकेंड. इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d, जिस चीज को डिफरेंशिएट करें यहाँ लिखा d by x, d x रेज टू पावर n dx. इसका रूल है मल्टीप्लाई बाय द पावर. ये जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो और रिड्यूस द पावर बाय 1. रिड्यूस द पावर बाय 1 मतलब x की जो पावर है n माइनस 1 हो जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज x रेज टू पावर 7 था, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7. इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो dy by dx विच इज इक्वल टू d by dx x रेज टू पावर 7. अब क्या है, इसकी पावर क्या है? 7. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से एंड रिड्यूस द पावर बाय 1, दैट इज 7x रेज टू पावर 6. एक और फंक्शन लो. सपोज y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 9 है. इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे? dy by dx इज इक्वल टू dx रेज टू पावर 9 dx. 9 यहाँ पर लिख दिया. रिड्यूस द पावर बाय 1, 9x रेज टू पावर 8. कोई दिक्कत? इज इट क्लियर? ओके. अब थर्ड करते हैं. थर्ड करते हैं. थर्ड डिफरेंशिएशन. सपोज कोई नंबर है जिस पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x. अगर इस तरह से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x लिखा है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है. आप क्या करेंगे? 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा. x रेज टू पावर 5 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू d by x 3x रेज टू पावर 5. ये क्या लिखा जाएगा? 3 तो बाहर वैसे ही आ जाएगा. अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसको? x रेज टू पावर 5 को. तो क्या हो गया? 3 इंटू 5x, 5 माइनस 1 रिड्यूसिंग द पावर बाय 1, तो कितना हो गया? 15x रेज टू पावर 4. ठीक है. अब एग्जाम्पल अब लेते हैं. नेक्स्ट सेकेंड यूज में थर्ड अब लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे अगर y इज इक्वल टू साइन x है, ये पढ़ रखा होगा आपने. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, मैं थोड़ा मैं इस बार कराऊंगी. y इज इक्वल टू साइन x, y इज साइन x. इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा dy by dx विच इज इक्वल टू d by dx साइन ऑफ x. साइन ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा आ जाता है cos ऑफ x.
इसको याद रखिएगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फोर्थ, इफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, अब कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये भी याद रखने वाली बात है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। फिफ्थ है, अगर हम इफ y इज इक्वल टू tan x, if y is equal to tan x, then dy by dx is equal to d by dx tan x, ये हो जाता है secant square x। सिक्स्थ, if y is equal to, अब लिख रहे हैं cosecant x, तो ये आएगा dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स, इसको लिखते हैं माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ये कुछ याद करने के लिए फॉर्मूलेज ही हैं। सेवेंथ, इफ वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू tan x secant x, ठीक है। sin x को डिफरेंशिएट करते हैं cos x को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस sin x, tan x को डिफरेंशिएट करते हैं secant square x, cos को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस cot x एंड cosec x, और secant को करते हैं तो tan x पर प्लस ही रहता है और secant x। ओके, eighth formula is if y is equal to cot x, then d by dx of y, that means d by dx of cot of x is equal to minus cosec square x। जैसे tan का sec हो जाता है, इसका क्या हो जाता है cosec square x, ठीक है। अब चलते हैं नाइन्थ इसके एग्जाम्पल पर। नाइन्थ, सपोज इफ y इज इक्वल टू u प्लस वी, y दो चीज़ों का सम है, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स u प्लस वी। इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई v dv बाई डी एक्स, ठीक है। ये सब तो याद कर लेते हैं, इसकी मैं एग्जांपल बताती हूँ कैसे। सपोज y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू लेट्स से 3t स्क्वायर प्लस t, 3t स्क्वायर प्लस t, यानी कि u प्लस v, तो व्हाट इज dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस t, यानी कि क्या हुआ d 3t स्क्वायर dt प्लस dt बाई dt। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 आ गया आपका बाहर, t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 3t स्क्वायर प्लस dt बाई dt 1, इट बिकम्स व्हाट 3 इंटू 2 t रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, कितना हो गया 6t प्लस 1। मतलब अलग अलग से पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन सम ऑफ टू थिंग्स होता है तो उसके दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके, ये तो सम के लिए कर दिया, ये सम है। सपोज अब 9th हो गया था 10th, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट है y, if y is equal to u into v, if y is equal to u into v, तो क्या करेंगे इसमें लेंगे, सॉरी लिखा नहीं, if y is equal to u into v, then dy by dx is equal to d by dx of uv। अब इसको कैसे लिखते हैं, पहले वाली चीज को कांस्टेंट लिख लो, दूसरी वाली चीज को डिफरेंशिएट कर लो।
फिर प्लस लिखो v du बाय dx। पहले फंक्शन को ऐसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखा और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू इस तरह से है, लेट्स से एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आप देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक तरह से ये u हो गया, ये v हो गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। ऐसे लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर को मान लिया u और साइन एक्स को मान लिया v, तो पहले फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर d बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज d बाई डी एक्स एक्स। क्या करा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर साइन एक्स को ऐसे कैसे रखा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लिया। अब सबको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर ये हो गया कॉस ऑफ एक्स। दूसरा वाला क्या है, साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर क्या आता है, अब पता लगे इंक्रीज जो पावर से मल्टीप्लाई करो एंड रिड्यूस द पावर बाय 1 इज लाइक दिस, सो बिकम्स एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 साइन एक्स, बाहर लिख देते हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो, 2x इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन हो गया डिफरेंशिएट करके अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो। अब अगर प्रोडक्ट हो सकता है तो डिवाइड करके भी हो सकता है u और v का। आई एम रबिंग दिस। सपोज 11th फंक्शन इस तरह से है कि y इज इक्वल टू u बाई v, हमारा फंक्शन ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई वी बाई डी एक्स। कुछ बच्चे मैंने सुना है कि वो ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन मान लेते हैं इंटू 1/y, वो भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर डिवीजन के उस टर्म्स में कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखो, क्योंकि याद ही रखना भी आपको, डेरिवेशन नहीं है, ये जो डिनोमिनेटर है उसका तो v स्क्वायर लिख लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करेंगे, उसका एज इट इज क्या लिख देंगे, हम डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे, उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हम सिंपली उसको डिवाइड बाय यू स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो u और v है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करा वही हम काम करने वाले हैं। हम पहले क्या करेंगे, v को एज इट इज लिखेंगे और du बाय डी एक्स कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे कैसे, ये u यहाँ पर आ जाएगा और dv बाय डी एक्स। समझ में आया। जो नीचे वाला फंक्शन था v जो था उसका तो ले लिया v स्क्वायर, उसके बाद क्या करा, ये जो u था उसको डिफरेंशिएट कर लिया और v आ गया यहाँ पर। सिमिलरली माइनस u dv बाय डी एक्स। ठीक है, इसका कोई वर्जन किसी और तरीके से भी लेता है, वो भी मैं करके बता रही हूँ। अब कोई कहता है y इज इक्वल टू यू इंटू 1/v, तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट रूल ही लगा दूँ, डिवीजन वाला क्या लगाना, प्रोडक्ट वाला ही लगाने थे, प्रोडक्ट जो के जाता। तो इस केस में क्या होगा, आप इसको कर सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू 1/v प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स 1/v। ठीक है, ऐसे करा। तो ये जो du बाई डी एक्स था उसको तो हमने कुछ करा ही नहीं, उसको ऐसे लिख दिया 1/v du बाई डी एक्स। अब दूसरा वाला जो पार्ट है 1/v वाला प्लस u, 1/v मतलब इसकी पावर क्या है, -1। 1/v मतलब पावर क्या है, मैं ऐसे लिख देती हूँ उसको d बाई डी एक्स, v की पावर -1। इसको कैसे करेंगे, 1/v du बाई डी एक्स प्लस u। अब रिड्यूस द पावर बाय 1,
एंड मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल पावर, ये हो गया। ठीक है, यानी कि आपने क्या करा अभी यहाँ पर, आपने -1 जो है वो बाहर निकाल लिया क्योंकि इसकी पावर थी, और v -1 ये -2 हो गया। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1/v du/dx इंटू प्लस u, और ये क्या आ गया, यहाँ माइनस आ गया, -1 आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, v रेज्ड पावर 2, दैट मीन्स v स्क्वायर। साथ में एक और चीज क्योंकि पूरी तरह से वो नहीं हुआ, dv बाय क्या था आपका, हाँ, ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि v रेज्ड पर -1 था, साथ में आपके dv/dx और आ जाता है, dv/dx। कौन सा dv/dx, क्योंकि डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, तो ये आ जाएगा dv/dx। ठीक है, अब थ्रू आउट क्या करते हैं हम इसको, थ्रू आउट क्या करते हैं, इसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, पूरे के पूरे को v स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। if इसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये तो आ जाएगा v² du/dx, यहाँ क्या आ जाएगा, v² u/v² dv/dx, और नीचे भी क्या आ जाएगा, v²। तो क्या आ गया, ये आ गया v du/dx माइनस u dv/dx होल डिवाइडेड बाय v²। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वाला फॉर्मूला याद रखो, dy/dx इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, ये मैंने बताया था, कुछ लोग मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो किस तरह से करते हैं, रेस्ट आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से करिए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा हमें। सपोज a number is written as if y is equal to, let's say, x divided by sin x। ठीक है, ये जो पहले हमने लिया था उसी टाइप से ले ले, x divided by sin x। अब इसको लेते हैं dy/dx is equal to, पहले sin x as it is, dx/dx, चलो कन्वीनियंट के लिए इसको x² ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, वैसे 1 ही हो जाता है, dx ये हो गया x² माइनस u इज व्हाट, x² d/dx sin x होल डिवाइडेड बाय v², इसको करा क्या आ गया, sin x एज इट इज, इसको लिखेंगे क्या 2x, इसको लिखेंगे -x², और ये क्या हो गया cos of x डिवाइडेड बाय v², यहाँ पर क्या था, ये sin x का होल स्क्वायर, ये आ गया sin x का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमने देखा था कि सीकेंड जो उसको डिफरेंशिएट करा था सीकेंड x को, तो आया था सीकेंड x इंटू tan x। लेट्स से वो कैसे आया था वो देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? फॉर्मूला याद रखिएगा कि v du/dx माइनस u dv/dx डिवाइडेड बाय v² इज एक्चुअली dy/dx, और y की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू u/v। इसी चीज़ को मैं लिख दूँ, लेट y इज इक्वल टू सीकेंड x। लेट्स से मेरे को सीकेंड x का डिफरेंशिएशन याद नहीं आ रहा, ऐसे है सीकेंड x इंटू cot x, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा। लेट्स याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर cos x का डिफरेंशिएशन मुझे याद है, मैं लिख देती हूँ 1/cos of x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या कर लेते हैं, इस u को तो मान लेते हैं 1 और v को मान लेते हैं cos x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू d/dx 1/cos of x, 1/cos of x, 1 यानी कि u और ये हो गया v यानी कि cos of x, यानी कि नीचे तो cos² x मैं लिख ही दूँ,
बी स्क्वायर एक्स होता ही होता है। अब फर्स्ट क्या करना है इसको, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, देन माइनस ऑफ 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। देखते हैं क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1, आपको पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 क्या होता है, कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो ये वाला पोर्शन तो गया कॉस एक्स इंटू 0, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज व्हाट, साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, इट बिकम्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स, तो मेरे पास क्या आ गया है, देखिए ये आ गया मेरे पास प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा ब्रेकअप कर देते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन बाय कॉस एक्स कितना हो गया, tan एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है, sin एक्स, आ गया वही डिफ्रेंसिएशन। तो ये जो आपका डिवीजन वाला रूल है उसमें u और v इसको मान लो, तभी आपके पास सेम चीज़ आ जाती है। ये मैंने बस एक एप्लीकेशन बताई है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है। ट्वेल्थ फॉर्मूला, I call this as a chain rule. 12th is the chain rule. Chain rule क्या है कि dy by dx is equal to dt by dx dy by dt into dt by dx. Yes, dy by dt into dt by dx, this becomes the formula. y की वैल्यू लेट्स से कोई ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेट्स से y इज इक्वल टू 3x प्लस टी 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास y की वैल्यू है, ठीक है। अब y की वैल्यू है तो मेरे लेट t इज इक्वल टू 3x प्लस 4, लेट t इज इक्वल टू 3x प्लस 4। y की वैल्यू मैंने ले रखी थी ये, तो अब y की वैल्यू क्या हो गई, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इस तरह से हो गया। मैं दोबारा बता रही हूँ, फंक्शन ही हमारा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई इंटू डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है 3x प्लस 4 को, तो मैंने ले लिया इफ y इज इक्वल टू दिस थिंग। अगर y की वैल्यू हो गई कि ये हो गई और t को मैंने लिया 3x प्लस 4, तो y क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है क्या, डी बाई बाई वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं फंक्शन लिखूंगी डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। यानी कि इस y को पहले हम t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लिख देती हूँ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी टी स्क्वायर, क्या हो गया 2t 2 माइनस 1 विच बिकम्स 2t। उसके बाद t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, t क्या था हमारा dt बाई डी एक्स, तो dt क्या था बेटा, dt था हमारा d बाई डी एक्स 3x प्लस 4। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको विद विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 ओनली, यानी कि dt बाई डी एक्स इज 3। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या करा हमने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई इंटू डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्या था डी वाई बाई डी एक्स था, डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, बात तो एक ही हो रही है। अब ये जो फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 था, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर ये फंक्शन ये है तो हम क्या कर लेंगे, t को ले लेंगे 3x प्लस 4, क्योंकि t इज इक्वल टू वॉट 3x प्लस 4, y को क्या ले लेंगे टी स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू दिस थिंग तो टी स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमारा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, y की वैल्यू थी उसको t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करा तो आ गया 2t। अब t था 3x प्लस 4, उसको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करा आ गया 3, क्योंकि ये तो 3x हो जाएगा प्लस में 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी दैट इज 2t इंटू 3। अब t तो एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, क्या थी t की वैल्यू, इट वॉज इक्वल टू 3x प्लस 4 into 3, so it becomes 6 into 3x plus 4, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं इस केस में,
सपोज आपका था y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दोबारा ये चीज मानते हैं, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y क्या हो गया साइन ऑफ t। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, वही चीज़ यूज़ करनी है फॉर्मूला, इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो dy बाई डी टी क्या होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी साइन ऑफ टी। साइन ऑफ टी क्या होता है कॉस ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट है कि डी टी बाई डी एक्स क्या होता है, डी टी बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है 2x 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2x। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस ऑफ टी, इसको लिख सकते हैं 2x कॉस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये शुरू में ऐसे करना, बाद में अपने आप ये आपको याद आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली ऐसा होगा कि साइन एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा 2x आ गया, साइन का डिफरेंशिएट हुआ क्या कॉस हो गया। ये शुरू में ऐसे है, बाद में आप जैसे हैबिट पड़ जाएगी आपको याद ही हो जाएंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो चीज़ होती है इसको डिफरेंशिएट करो, फिर साइन को डिफरेंशिएट करो एंड सो ऑन, एंड जस्ट मल्टीप्लाई द टू, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी जगह ये ना होकर ऐसा होता साइन ऑफ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपका होता साइन ऑफ 4x होता, 4x होता, तब क्या कहते हैं लेट t इज इक्वल टू 4x और t इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू वॉट साइन ऑफ t, दोबारा वही चीज़ चलती, ये तो कॉस्ट ही हो जाता। यहाँ पर आपने क्या लिख रखा था, यहाँ पर लिख रखा था आपने क्या कहते हैं 4x, तो 4x को डिफरेंशिएट करते 4 आता, तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आ जाता 4 कॉस ऑफ t विच इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ कॉस ऑफ 4x। इस तरह से डिफरेंशिएट ये कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। एक लॉग चीज है, उसको हम करेंगे बाद में डिस्कस, अभी मैं बता रही हूँ। अगर कोई लॉग का फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x लॉग ऑफ x, तो इसका आंसर 1/x हो जाता है, 1/x हो जाता है। लॉग को हम डिटेल में भी थोड़ी बार स्टडी करेंगे। What is differentiation of log of x? Differentiation of log of x is equal to 1/x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या करना, जो भी हम पहले डिवाइड करते थे पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए, वो जर्नल के लिए करते थे, एवरेज के लिए करते थे। अब जब स्पेसिफिक हो जाएगा पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि आपका फंक्शन चेंज हो रहा है जब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग विच इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। अगर मैं कह रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड लिमिट डेल्टा एक्स चेंजिंग टू 0। मैं आपको दोबारा मैं वही चीज़ बता रही हूँ, शुरू में बताई थी। इसका मतलब है y एक फंक्शन है, अगर x की वैल्यू थोड़े सा अमाउंट से चेंज करोगे तो y की वैल्यू कितनी चेंज होगी, उस रेशो को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, वेलोसिटी होती है, पर अगर आप कह रहे हो कि आप ये बताओ कि बहुत थोड़े से टाइम में t प्लस छोटा सा टाइम, थोड़े से टाइम में डेल्टा t टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, थोड़ी सी चेंज हुई, वेयर डेल्टा t इटसेल्फ इज अप्रोचिंग 0, तो ये आपकी जो हो जाएगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होती है। इसी चीज़ को हम ds बाई dt से भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर डिफरेंशिएशन पार्ट? ओके, you understand this thing. In the next class we'll be discussing integration. Okay.